Good evening, everyone. Thank you for joining us today for this webinar on Franklin Multicap Fund, the NFO new fund offer. We are delighted to have you with us all, and we'll explore this unique investment opportunity. Our speaker today is Mr. Mohit Kumar Sharma, who is the director and co-head of India retail sales at Franklin Templeton Asset Management Company. He comes with a wealth of experience and deep insights into the financial market, and he is very well equipped to guide us through the intricacies of this fund and how it can be a value addition to the investment portfolio. Mr. Sharma has been a key player in the retail sales sector and has contributed significantly to the growth and success of Franklin Templeton in India. His expertise and vision have helped the AMC become a good brand name. He has helped a lot in that. Why are we having this webinar for you guys? These days we keep hearing a lot about multi-cap investing. There is a lot of noise. There is a lot of noise. There is a lot of glamour around multi-cap investing. There are so many strategies, information out there. But what's also doing is that just the overflow of this information is creating a slight clutter among us. So I expect Mr. Sharma to cut through that clutter and give us some unique insights on the topic. During this webinar, Mr. Sharma will provide us with an in-depth overview of the Franklin Multi-Cap Fund, discussing its investment strategies, key features, and the potential benefits for the investors, definitely. We will have the Q&A session at the end of the session. We are keeping it in the end. अगर आपको और भी कोई बीच में कुछ सवाल है, कुछ queries है, तो बेझिझक उसे आप चैट में डाल दीजिएगा. I am here to moderate through that meeting, and we will take your questions up definitely to Mr. Sharma, and मुझे यकीन है कि सर उसको बहुत अच्छी तरीके से आंसर करेंगे. सो बिना देरी किए हुए I will ask Mr. Sharma, Mr. Mohit Sharma, to take this forward. Over to you, sir. Thank you, Abhinay, and thank you, Asset Plus team, for organizing this interaction. And thanks to all the people who have logged in the call. So the landing slide reads about the NFO itself, and वो tagline रखी है हम लोगों ने एक जगह जब साथ हो तीनों. So it is inspired from movie अमर अकबर एंथनी. तो काफी लोग मेरे ख्याल से देखा होगा या सुना होगा आपने वो गाना जो अमर अकबर एंथनी का था. That is the punchline that we have taken. So फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से आप सब लोग काफी इंटरैक्ट कर चुके हैं पास्ट में. तो एक चीज खास है, अगर आपने समय अपना दिया है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को, तो हमारा एक इंटेंट रहता है, एक डीप इंटेंट, कि हम कुछ अपने पार्टनर्स का वैल्यू ऐड करें. तो इस प्रेजेंटेशन में भी, हालांकि एक फंड लॉन्च का प्रेजेंटेशन है, पर मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसको केवल और केवल इस फंड की इंफॉर्मेशन के लिए आप ना देखें. इस इंटरेक्शन को, ये इंटरेक्शन आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए. जो करंट इक्विटी मार्केट का स्टेटस है, उस मार्केट के स्टेटस को देखते हुए जो क्वेश्चंस हमारे पास लेकर के हमारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनके शायद आपको कुछ जवाब मिले. इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ जवाब मिले. फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को आपको बेहतर जानने का मौका मिलेगा. एंड आई एम श्योर अपने जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो मल्टी कैप फंड है उसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा. मूविंग ऑन, दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड. सो आप में से काफी लोग वाकिफ हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से. तो जो सफर है इंडिया में म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट का, so we have completed more than 3 decades of equity investing in India. And coming forward, कुछ facts हैं about Franklin Templeton. जानना जरूरी है कि किस मैन्युफैक्चरर का आप लोग फंड अपने इन्वेस्टर के पास लेके जा रहे हैं, उस फंड हाउस को जानना बहुत जरूरी है. तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. जो यूएस पेरेंट है हमारा, वो हमारी मोर देन 76 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है. और इंडिया में भी ऐसा आप देख रहे हैं, हम वी आर इन 28th ईयर ऑफ आवर ऑपरेशंस. तो एक छोटी सी कॉर्पोरेट फिल्म है, कुछ 2-2.5 मिनट की. बट अभिनय, आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आई थिंक ऑडियो शायद ना आए इसका जूम कॉल पे, बट जस्ट कंफर्म मी इफ यू कैन हियर.
आई एम पुटिंग ऑन अ वेरी यस सर, स्मॉल। आप प्ले कर दीजिए, अगर कुछ दिक्कत है तो आई विल लेट यू नो। हाँ, इज अ वॉल्यूम कम टू यू? नहीं सर, वॉल्यूम Okay, नहीं no, आ no रही। worries. Then I'll just skip then. That's why I'm asking. Zoom पे कई बार चलता नहीं है video. That was just करेक्ट। talking about my corporate philosophy. This is, we say, it's a two-word philosophy. It says hello progress. तो mindset भी progress का है, intent भी progress का है, जो actions है वो भी progress के हैं. And on that note, getting into the presentation, ladies and gentlemen, and I'm very happy to share with you. We are reading it. It's time to roar. It's 1 lakh crore. Franklin Templeton has crossed that milestone in the industry of 1 lakh crore recently. And thanks to all of you all जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस जर्नी में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ में। एक छोटा सा सवाल है मेरा, और आप लोग अगर काफी समय से जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री के साथ में या फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ में, पिछले 10 सालों में आपने कौन सा एक न्यू फंड या नया फंड आपने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का बेचा है या देखा है? आर यू अवेयर हमने कितने फंड लॉन्च करे हैं? मैं थोड़ा समय को बचत करते हुए बताता हूँ, हमने कोई भी इक्विटी फंड लॉन्च नहीं किया है 10 सालों के अंदर। मेरा पिछला इक्विटी फंड जो लॉन्च हुआ था वो 15 साल पहले हुआ था, लेडीज एंड जेंटलमैन। और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, बिकॉज इसके अंदर एक फंड की एक फिलोसफी छुपी हुई है, फंड की एक सोच छुपी हुई है। लेकिन वो फंड कौन सा था? लेट मी टॉक अबाउट दैट फंड। वो फंड था बिल्ड इंडिया फंड। लॉन्च किया गया था सितंबर 2009 में। दिस इज हैड बीन अ स्टेलर परफॉर्मिंग फंड। ये भी ध्यान करिए आप लोग, 2009 को जो समय था ना, 2007 8 9 वाला जो फंड टाइम था, वो एक इंफ्रा सेक्टर की रैली थी बहुत बड़ी। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने इंफ्रा फंड लॉन्च ना करते हुए एक ब्रॉड बेस्ड थीम को पकड़ा, बिल्ड इंडिया। उसको फंड हमने लॉन्च किया। परफॉर्मेंस आपके सामने है। परफॉर्मेंस दिखा के फंड सेल करने का आइडिया नहीं है। आइडिया ये है कि एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी कार्व आउट की गई इन द नॉइज ऑफ इंफ्रा रैली। एंड उस रैली में भी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने एक स्टेबल स्ट्रैटेजी क्रिएट करी, बिल्ड इंडिया। एंड आपके सामने है कितना क्लियरली कि वेल्थ क्रिएशन हुआ है। सिंस इंसेप्शन पैसा लगभग 14 गुना हो चुका है, 10 सालों में 7 गुना हो चुका है। 1 3 ईयर रिटर्न आपके सामने है। उससे पहले जो हमने फंड लॉन्च किया था वो था जो आज आप जिसको आप फोकस इक्विटी फंड के नाम से जानते हैं। वे भी इंडिया का लगभग पहला ऐसा फंड था जिसमें हाई कन्विक्शन आइडिया का एक पोर्टफोलियो बनाया गया। 30 या 31 स्टॉक का पोर्टफोलियो था। द फंड हैज डन फिनोमिनली वेल। उसी फंड को हमने पोजीशन किया है सिर्फ एज अ फोकस इक्विटी फंड। रिटर्न आपके सामने है। अगेन डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया फंड को एज पर द गिवन मैंडेट। इट हैज बीन अ वेल्थ जनरेटर। 15 years में मोर देन 11 टाइम्स मनी हैज ग्रोन। 10 साल में 5 गुना पैसा हो गया है। 3 year and 1 year रिटर्न आर फॉर यू टू सी। सो व्हाट एल्स? अगर आप फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का कोई फंड आप कर रहे हैं, आई एम श्योर, मैं अज्यूम करता हूं कि आपने ये फंड जरूर देखा होगा, या इस फंड को आप इस समय वॉच कर रहे होंगे, या फिर ऑलरेडी आप सेल कर चुके होंगे। ये पिछले साल ये फंड मैं आपके पास लेके आया, इसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। प्लीज समझिएगा, लास्ट ईयर भी हमारे पास ऑप्शन था कि हम एक न्यू फंड ऑफर करें, लेकिन मैनेजमेंट का थॉट था कि नहीं, वी हैव एन एग्जिस्टिंग फंड, हम उसी फंड को ही ड्यू पोजीशन क्यों ना करें। एक यूनिक फंड है, किसी और समय में बात कर लेंगे इसके बारे में, मे बी नॉट इन डिटेल टुडे। बहुत ब्रीफली बताते हुए, आप लोगों के जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं थीमेटिक फंड को लेकर के, इन्वेस्टर का जो भी रिक्वायरमेंट होता है एक सेक्टोरल स्ट्रोक थीमेटिक फंड में आने का, वो अकेला ये फंड पूरे करता है। हमारा कंस्ट्रक्ट क्या, अप्रोच क्या रही इस फंड को लॉन्च करने की? 2022 में हमने चेंज किया, 1 साल तक वेट किया, तब आपके पास 2023 में लेके आए। अप्रोच क्या रखी हम लोगों ने कि 80% पोर्टफोलियो जो फंड का है वो मार्केट की लीडिंग 3 थीम्स में इन्वेस्टेड रहेगा। वो थीम सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी फंड हाउस की होगी, फंड मैनेजर की होगी। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जब आप एक किसी नैरो थीम के अंदर अपने इन्वेस्टर का पैसा आप इन्वेस्ट कराते हैं, वो नैरो थीम की शॉर्ट टर्म के लिए एक रैली आती है, एक सेक्टर जैसे होता है कि बहुत अट्रैक्शन होता है, इन्वेस्टर्स लाइन लगा के उस सेक्टर के अंदर आ जाते हैं, फंड राइज करता है, नोशनली वेल्थ गेन होती है, या तो वहां पे लेवल पे सेक्टर खत्म हो जाता है या फिर उसके नीचे रिटर्न क्रैश होने लगते हैं।
कोई समय नहीं आता बताने का कि उस सेक्टोरल फंड से, थीमेटिक फंड से कब निकलना है। तो इस अपॉर्चुनिटीज फंड में लेडीज एंड जेंटलमैन हमने इसके कंस्ट्रक्ट में इनबिल्ट किया कि ये सेक्टर जो थीम को चेंज करना है वो जिम्मेदारी हमारी है। तो 3 ब्रॉड थीम में इस फंड ने इन्वेस्ट किया। पहली थीम थी मेक इन इंडिया, सेकंड थीम थी डिजिटलाइजेशन, थर्ड थीम थी एनर्जी ट्रांजिशन। परहैप्स एसेट मैनेजमेंट स्पेस में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन लगभग अकेला या पहला फंड हाउस होगा जिसने एनर्जी ट्रांजिशन फी स्कीम को आइडेंटिफाई किया था। फंड हैज डिलीवर्ड स्टेलर रिटर्न। इसका रिटर्न नेचुरली लॉन्ग टर्म, क्योंकि पुराना फंड है इतना रेलेवेंट नहीं रहता है, बट लुक एट लास्ट 1 ईयर रिटर्न द वे फंड हैज परफॉर्म। बात जो मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन वो ये है कि अगर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कोई फंड, हम आइडिया लेके अगर आपके पास आ रहे हैं, तो वी रिमेन कंप्लीटली इन्वेस्टेड इन दैट स्ट्रेटजी। हम उस फंड को तभी आपके पास लेके आते हैं जब हमको कॉन्फिडेंस होता है कि इस फंड की सस्टेनेबिलिटी है, इस फंड की स्केलेबिलिटी है, ये लॉन्गर टर्म थीम्स हैं, हमारे पास फंड मैनेज करने के लिए काफी आइडियाज हैं, एंड देन वी ब्रिंग फंड्स टू यू। हम हर क्वार्टर, हर महीने हम नहीं नए फंड लेके आते हैं। ये जो आप समय अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक है लैंडिंग पेज जो बोल रहा है 3 decades 2 funds 1 legacy। मेरे 2 फंड, ब्लू चिप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, हैव कंप्लीटेड 30 years लेडीज एंड जेंटलमैन। एक मायने रखता है किसी फंड हाउस के पास इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होना। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर, एक बहुत प्राउड मोमेंट था हम सभी एम्प्लॉयज के लिए, बल्कि मैं बोलूंगा हम सभी लोगों के लिए जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कि एक पोस्टल स्टैंप निकाला गया इस 30 साल के सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज की डेट में फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और प्राइमा फंड के ऊपर एक ₹5 का डाक टिकट मौजूद है। जो आप देख रहे हैं सेंटर में मैडम, ये मेरी ग्लोबल प्रेसिडेंट है जेनी जॉनसन, शी वाज इन इंडिया। और जेनी जॉनसन के लेफ्ट में जो है मेरे सीईओ हैं मिस्टर अभी सतवालेकर, एंड अभी के जो लेफ्ट में हैं वो मेरे सीआईओ हैं जानकी रमन, और एक्सट्रीम स्क्रीन के लेफ्ट में जो है ही इज डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट महाराष्ट्र, हु वाज प्रेजेंट ऑन द मोमेंट फॉर द रिलीज ऑफ दिस पोस्टल स्टैम्प। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, एक कोविटेड एक मार्की फंड्स हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बुके के अंदर, उनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस का, दे हैव जेन्युइनली क्रिएटेड वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स, एंड वही हमारी अप्रोच होती है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की। ये अगर आप देखेंगे, मैं बोलूंगा मेरे कंपटीशन के लिए ये एनविएबल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। uh, 2 फंड, अब तो हालांकि तीसरा फंड जो मेरा फ्लेक्सी कैप फंड है उसके भी 30 साल पूरे होने जा रहे हैं। 3 फंड्स हो जाएंगे विद 30 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड। 8 फंड होंगे जिनका 25 साल से लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। 17 फंड्स 20 साल कंप्लीट कर चुके हैं, और लगभग ऐसे 10 फंड हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 25 साल से ऊपर है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब ना करने के लिए एफर्ट लगता है, एक सोच लगती है, एंड दैट इज द, आई वुड से, फिलोसफी ऑफ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, या तो हम फंड नहीं करेंगे या हम फंड क्रिएट करेंगे, वी विल डू इट विद कंप्लीट प्रोसेस, फिलोसफी एंड कंप्लीट डेडिकेशन। यही रीजन है व्हाई यू हैव सच अ ग्रेट बुके ऑफ फंड्स अवेलेबल एट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन विद यू। जिस भी कैटेगरी में आप चाहें वहां पे आपको एक विनिंग फंड अवेलेबल है अपने इन्वेस्टर को ले जाने के लिए। अगर आपको ईएलएसएस में जाना है, टैक्स शील्ड is a beautiful fund to take forward with a 25-year track record. वैल्यू फंड इंडिया का परहैप्स पहला वैल्यू फंड था। अगर आप डिविडेंड यील्ड में जाएंगे, वो पहला फंड था इंडिया का जो पैसा अब्रॉड इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेके गया था, ऑप्शन अवेलेबल किया था, इक्विटी इनकम फंड। लिस्ट इज लॉन्ग। ये एक छोटा सा स्नैपशॉट है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बारे में, कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं सब पॉइंट्स को रीड आउट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी आर यूएस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूएस में लिस्टेड कंपनी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, लगभग $1.6 ट्रिलियन मैनेज करती है कंपनी। रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 136 लाख करोड़ के आसपास मैनेज करते हैं। कुछ लोगों को साइज से कंफर्ट मिलता है। फिलॉसफी है टू ऑलवेज वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट। For me, people on the call to share with you, I'm very happy to share, ये मेरा 25th ईयर है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ। कंपनी इन्वेस्ट करती है अपनी टीम्स, अपने एम्प्लॉयज के अंदर। इट्स अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद।
और मुझसे अगर आप पूछे कोई पर्सनली व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस कंपनी, आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू, वर्ल्ड ओवर जहां भी हमारी प्रेजेंस है ना, वी जस्ट डू वन जॉब। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केवल एक ही प्रोडक्ट कंपनी आप बोल सकते हैं, that we manage investors money, we provide them investors investment solutions, that's all। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन बाय डिजाइन ना तो बैंक है, ना इंश्योरेंस कंपनी है, ना स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, ना एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है कि हमारे ऑयल रिफाइनरीज भी हैं और एयरलाइन भी है, एविएशन भी है, टायर्स भी हैं, होटल्स भी हैं, नहीं। we just do one job, and people call us super specialist, and we love that। करेक्ट, दैट्स फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो। एसआईपी का इंट्रोडक्शन इंडिया में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने किया, एसटीपी का इंट्रोडक्शन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से हुआ, डेली एनएवीज का कॉन्सेप्ट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने लॉन्च किया, एक एकेडमी, एक लर्निंग एकेडमी का ओरिएंटेशन, एक क्रिएशन पहली बार इंडस्ट्री में इंडिया में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने किया। और तो और शायद आपको ना पता हो, all trail model, all trail commission model was introduced by Franklin Templeton। monthly portfolio disclosures list इससे भी लंबी है। और स्क्रीन के आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने ही स्टार्ट करी है इंडिया में। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं आपको, जब आप एसोसिएट होते हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से के फंड को अपने क्लाइंट के पास ले जा करके, आर इंटेंशन इज टू ब्रिंग इन द बेस्ट practices of the industry to you, चाहे वो लर्निंग के माध्यम से हो, चाहे इन सेशंस के माध्यम से हो। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि खाली एनएफओ का प्रेजेंटेशन नहीं है, इंटेंशन ये है कि हम कैसे वैल्यू ऐड करें। ओके, मूविंग ऑन एंड नाउ गेटिंग क्लोजर टू द सब्जेक्ट ऑफ टुडे इवनिंग। इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में आई डोंट थिंक हम जितने भी लोग इस समय कॉल पे हैं हमें कोई डाउट होगा, लेकिन अगर इसको देखा जाए, मैं आपको बोलूं सिंपल टर्म में, अगर आपको अपने क्लाइंट को समझाना है कि क्यों आपको कॉन्फिडेंस है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या इंडियन इकोनॉमी में, दो तीन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं, उनको बहुत सिंपल तरीके से अपने क्लाइंट्स को बोल सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन है हमारा जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन। चाहे 2022, ये कलर कोडिंग स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, 22 से लेके 2025 तक का ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है। 6.5 to 6.8% का एक्सपेक्टेशन है जीडीपी ग्रोथ का। जीडीपी ग्रोथ अगर आपकी इस रिटर्न ऑफ ग्रोथ में रहती है, ऑफ कोर्स मार्केट बायंट रहेंगे। मैं अभी कमिंग स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो बहुत बड़ा जो रीजन है आज की डेट में जो हम और आप इंजॉय कर पा रहे हैं इस मार्केट को, इस इकोनॉमिक गेन को, वो ये रहा है कि इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लेशन को मैनेज किया है। प्लीज इस चीज को समझिएगा, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसको समझना, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा जब कंट्रोल रहा, कोविड के टाइम को याद कीजिए, डेवलप्ड वर्ल्ड में और मैक्सिमम जगह लोगों को कैश बांटा गया। टू गिव ड्यू क्रेडिट्स टू अवर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कैश ना बांट करके ग्रेन्स बांटे लोगों को। वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और बहुत सारे मेजर्स रहे, बहुत सारे पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं लिए इस गवर्नमेंट ने। तो आज की डेट में जो वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट भी प्रेस करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंड को, जहां पे इन्फ्लेशन पे एक बहुत तगड़ी निगाह रखी गवर्नमेंट ने, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल रखा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंप्रूव हुआ, उसके चलते गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे रहे। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट नेट ग्रोथ रखी, रेलवेज, रोडवेज, पोर्ट्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। जब वहां पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, आज की डेट में दैट ट्रेन हैज स्टार्टेड मूविंग, और आज प्राइवेट कैपेक्स भी स्टार्ट हो रहा है और हाउस होल्ड कैपेक्स भी आगे आ रहा है। तो शुरुआत सिंपल करिए, जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताइए क्लाइंट को, बताइए कि वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ इज 3 और 3.5%। दो नंबर बोलिए, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है रेट 6.5% प्लस है और एक्सपेक्टेड है। वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ इज लगभग 3 to 3.5%। क्यों जीडीपी ग्रोथ हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत टाइट तरीके से फिस्कल डेफिसिट को मैनेज किया है, इन्फ्लेशन को मैनेज किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड इन्वेस्टमेंट्स करे हैं। आगे चलते हैं इसको समझने के लिए। लिंक क्या है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का? मैंने आपको हिंट दिया, चाहे वो जीएसटी का इम्प्लीकेशन रहा हो, चाहे वो बैंक्रप्सी कोड का इम्प्लीमेंटेशन रहा हो, बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स जो लिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लेवल पे उन्होंने हेल्प किया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे मैं टच बेस कर चुका हूँ। इन सब के चलते क्या हुआ है, कॉर्पोरेट इंडिया की जो अर्निंग है, जो प्रॉफिट्स हैं, उनके अंदर बढ़ोतरी हुई है। बहुत सिंपल है इस ग्राफ को समझना। ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट और जीडीपी का कोरिलेशन है इस स्लाइड के अंदर। इसको आप वो सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। टाइम फ्रेम देखिए आप 2006 और 7 वाला, यानी कि जब कॉर्पोरेट प्रॉफिट 7.3 और 7.8% थे जीडीपी के। याद करिएगा जो पिछला बुल रन था वो 2003 से 2008 था। उसके बाद से कॉर्पोरेट प्रॉफिट का लगभग एक सस्टेन तरीके से डिक्लाइन रहा है। आ जाइए कोविड के समय में 2020 के टाइम फ्रेम में it came down to 2.2%। ये लाइन धीरे 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 ऊपर बढ़ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की डेट में हम 4% के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ये कॉन्फिडेंस रखिएगा कि यहां से उम्मीद है ये जो 4% आपका जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो है, दिस विल कीप मूविंग अप। और ये अगर अभी हम अर्ली फेज हैं स्टार्ट के। क्यों ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है? क्लाइंट मार्केट को देख रहा है मार्केट के लेवल से कि 79,000 हो गया, 80,000 हो गया, जो कि सही नहीं है। एक तरीके से उसको देख करके एक डर के अंदर अपने मन के अंदर आना। आप लोग, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जीडीपी के बारे में बात करें, फिजिकल मेजर्स इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, तीसरी बात करें कि हाँ कॉर्पोरेट इंडिया के जो प्रॉफिट्स हैं दे आर गेटिंग इनटू अ वेरी हेल्दी जोन। और ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। इमेजिन करिए ये अगर 4.1 से अगर पहले भी पीक पे जाता है वापस, ओके, देयर इज अ वेरी लॉन्ग लेग अहेड, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस टू यू। और ये स्लाइड क्लियर कर देती है आपको। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें जीडीपी के जो ये है मार्केट, जीडीपी और मार्केट का, ब्लू लाइन बता रही है जीडीपी की ग्रोथ, ग्रीन लाइन बता रही है सेंसेक्स की ग्रोथ। लगभग सी मिरर इमेज है दोनों की। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी के बारे में ग्रोथ का, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मार्केट्स में अभी काफी लेग और स्टीम बाकी है। दिस इज टू अर्ली टू बी फेयरफुल। ओके, जीडीपी रैंकिंग के बारे में बहुत बात हम लोग इलेक्शन के दौरान भी सुन चुके हैं इस बार, वेरी इंटरेस्टिंगली, जहां हमारे पॉलिटिशियंस बात कर रहे थे कि कहाँ पे एक्सपेक्टेड है इंडिया की इकोनॉमी का बढ़ना। एंड थैंकफुली लोगों के अंदर अप्रिसिएशन है कि हाँ हम 3.5 ट्रिलियन हैं, हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि बाय 2027 इंडिया जो है जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाला है। हो सकता है हम सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हो जाए वर्ल्ड। करेक्ट। तो इस जर्नी में तैयारी करनी है, इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने की, वो कॉन्फिडेंस रखिए। केवल और केवल अपने इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है। हर इन्वेस्टर को, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस न्यूट्रल और काम डाउन होनी चाहिए। वही तरीका है इस समय नया पैसा मार्केट में लेके आने का। मार्केट कैप के बारे में यस, हाँ, लगभग उम्मीद है कि 2030 तक जो मार्केट कैप है इंडिया का वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। यही एक हिंट है जो आप वेल्थ क्रिएशन का सोच सकते हैं। कमिंग बैक क्लोजर टू द सब्जेक्ट ऑफ इवनिंग, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जब भी हम कोई फंड मैनेजमेंट की बात करते हैं वो है अबाउट फिलोसफी एंड प्रोसेस। और ये मैं हर आप किस लोगों को बोलता हूं कि आप लोग जो अपने इन्वेस्टर्स का हार्ड अर्न सेविंग्स लेके आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको देखना चाहिए कि फंड हाउस कौन सा है जिसको आप पैसा सौंप रहे हैं। प्रोडक्ट बहुत बाद में आता है, पहले फंड हाउस का सिलेक्शन कीजिए। टेक्निकली आप लोग अपने क्लाइंट के लिए एक फंड मैनेजर को हायर करते हैं। तो ये हम अपने तरीके से समझाते हैं लोगों को कि अगर आप किसी भी फंड हाउस को देख रहे हैं तो उसको 5 P के पैमाने से देखें। 5 Ps, पीपल, लोग कैसे हैं फंड हाउस के। प्रोसेस, कोई प्रोसेस है भी कि नहीं, क्या ये प्रोसेस मेरे को लिखित में मिल सकता है, कोई समझा सकता है। तीसरा पी है फिलॉसफी, पीपल प्रोसेस फिलॉसफी। फिलॉसफी भी कोई फिलॉसफी है भी कि नहीं है फिलॉसफी। ओके, 3 P हो गए, लास्ट 2 P है पोर्टफोलियो और परफॉर्मेंस। अगर ये 5 P आपको कॉन्ग्रुएंस में मिलते हैं, हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन द फंड हाउस एंड देन सेलेक्ट द स्कीम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो है पर्सोनिफाई करता है एक लॉन्ग टर्म अप्रोच को, जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं कि हमारे 3 फंड तो लगभग 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड लेके बैठे हुए हैं इस वक्त। एक इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस है हमारा, कंप्लीटली बॉटम अप रिसर्च हमारा ओरिएंटेड हमारी अप्रोच है। क्वालिटी के लिए हमको कहा जाता है कि हम स्टिकलर हैं, क्वालिटी के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी।
और ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस हमारा मोटो है, हमारा मंत्रा है, हमारा ओरिएंटेशन है। इसको मैं अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट स्लाइड पर समझाता हूं आपको। इसको आप समझ लें। बहुत से फंड हाउस आपको प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे अपने अपने मॉडल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो QGSV मॉडल आप देख रहे हैं, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वी ईट ब्रीथ स्लीप दिस प्रोसेस। ये आपको एक मैं इंसाइट देता हूं कि कैसे फंड मैनेजमेंट का प्रोसेस है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का। पहला फैक्टर है क्वालिटी का। यानी इंडिया में अगर 5,500-6,000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं, जब आप क्वालिटी का पैमाना लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, तो लगभग वो कंपनीज हमारे पास लगभग 400 रह जाती हैं मात्र। समझिएगा इस चीज को आप, इतना स्ट्रिंजेंट मेजर है ये। उस 400 के अंदर भी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन लगभग 300 कंपनियों को रिसर्च करती है, एनालाइज करती है। उसके बाद देखा जाता है सेकंड फिल्टर ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, एबिटा कहाँ पे है, स्केलेबिलिटी क्या है। यानी कि वो बिजनेस जो आपने क्वालिटी पे खरा पाया, क्या उसके अंदर अंडरलाइंग ग्रोथ है कि नहीं, इन्वेस्टर का पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। वो है जी पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर है एस। एस सिंपल है कि मैनेजमेंट का विजन क्या है, उनकी विजिबिलिटी क्या है, वो कितना इसको स्केल करने की क्षमता है कि नहीं है। यानी कि ये जो ग्रोथ हमने असेस करी, इस ग्रोथ की आगे लंबी लाइन कितनी है, कब तक चलने वाली है वो ग्रोथ। 6 महीने के लिए ग्रोथ है, 1 साल के लिए, कि 6-10 साल के लिए है। ओके, तो QGSV इन प्लेस हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डाला जाता है कि भैया वैल्यूएशन कहाँ पे है। कोई फायदा नहीं है मैंने बेस्ट बिजनेस पिक किया, बहुत हाई ग्रोथ बिजनेस पिक किया, सस्टेनेबल उसकी ग्रोथ है, क्वालिटी है, लेकिन वैल्यूएशन यहां पहुंचा हुआ है, तो मैं आपके लिए पैसा नहीं बना पाऊंगा। और यहां पे मेरा आता है लास्ट बॉटम पे जो लिखा आप देख रहे हैं ना, गार्थ, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। हम ये देखते हैं कि ग्रोथ मिलना जरूरी है, बट मेरे को ऐसी कंपनी चाहिए जो रीजनेबल प्राइस पे हो, ताकि मैं अपने इन्वेस्टर के लिए रिटर्न बना पाऊं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक स्टिकलर हमारा है, कहते हैं प्रोसेस के लिए हम कुछ भी करते हैं, पूरा एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड दिस प्रोसेस ऑफ QGSV मॉडल। एंड दिस इज द रीजन कि हमारे जो फंड हैं आपने देखे हैं आज की डेट में, वो एक अलग तरीके से खड़े हैं इंडस्ट्री में। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी जो फॉलोइंग है, उनके लिए जो रिस्पेक्ट है, दैट इज वेरी डिफरेंट फॉर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड्स। कमिंग टू द सब्जेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, मल्टी कैप फंड हम लॉन्च कर रहे हैं, एंड नाइस कोइंसिडेंस, आज पहला दिन है NFO का। मल्टी कैप स्पेस बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझने के लिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में 25-25-25% अलोकेशन करना होता है। रिमेनिंग 25% का अलोकेशन कैसे करते हैं, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। मैं आपको फंड के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि हमारी फंड की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होगी, हम इस स्पेस को कैसे देखते हैं, और हम क्या डिफरेंशिएशन लाने वाले हैं आपके लिए। सिंपल फैक्ट्स हैं स्लाइड पे आपके सामने, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। 25-25% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, और कैसे आप हम फ्रेमवर्क बेस करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं आपसे। ओवरऑल जब देखते हैं आप इस सेगमेंट को, लगभग 22 सेक्टर्स आपको प्ले करने के लिए मिलते हैं अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल। तो पर्सनली भी मेरे को ये स्पेस बहुत पसंद है, जो मल्टी कैप स्पेस है, बिकॉज एक बहुत सही तरह का लोकेशन पोर्टफोलियो में आपको आ जाता है, और एक बहुत ऑप्टिमम बैलेंस है रिस्क और रिटर्न का इस पोर्टफोलियो के अंदर। इसको चलिए आगे समझते हैं स्पेस को। मल्टी कैप कॉम्बिनेशन को हम क्यों बेटर मानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इसको क्विल्ट ग्राफ बोलते हैं। ये जो आप कलर देख रहे हैं, हल्का सा टुवर्ड्स पिंक की तरफ है। दे कैन बी अ स्पेसिफिक कलर नेम टू दिस कलर विच आई डोंट नो, पर मैं 2007 के ब्लॉक को देख रहा हूँ, 97% ग्रोथ। ये कलर है, नीचे देख लें आप, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का। जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं, वो है लार्ज कैप इंडेक्स का। हल्का सा ग्रीनिश कलर है, वो मिड कैप का है। और जो ये टी कलर है, ये 500 मल्टी कैप का कलर है। और एक जो पर्पलिश कलर है, वो डाइवर्सिफाइड है। पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ इस ग्राफ के अंदर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा देखने के लिए, पर लेकिन सिंपल इंफॉर्मेशन है। स्मॉल कैप इंडेक्स टॉप परफॉर्मर रहा है। आप खुद देख लीजिए, काउंट करिए 2006 से 23 के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8 सालों में स्मॉल कैप इंडेक्स टॉप पे रहा है, करेक्ट। लेकिन एक चीज शायद आपने गौर ना की हो स्लाइड के अंदर, लुक एट द बॉटम। बॉटम कितनी बार रहा है? 2008 ओके से ऑनवर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब यह है कि यस, स्मॉल कैप ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं 8 इयर्स आउट ऑफ दिस टाइम फ्रेम, लेकिन 7 टाइम्स वो वर्स्ट परफॉर्मर भी रहा है। कमिंग क्लोजर टू द टॉपिक, लुक एट द मल्टी कैप स्पेस। ध्यान करिएगा, ये मल्टी कैप इंडेक्स बेंचमार्क का रिटर्न लिया गया है। ये मल्टी कैप स्पेस ना तो कभी नंबर 1 रहा और ना ही कभी वर्स्ट रहा। तो कहते हैं विजडम ऑफ द मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग। तो मल्टी कैप वो स्पेस है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप स्पेस, आप अपने रिटर्न से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। एक बेस्ट पॉसिबल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपने क्लाइंट को आप दिला सकते हैं। और दिस इज व्हाट दिस ग्राफ इज टेलिंग मी एंड यू। सिंपल कि भाई एक ब्रॉड बेस इंडेक्स चाहिए होता है कि हमें थोड़ा स्क्यूड इंडेक्स चाहिए होता है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक जो हम आगे बात करने वाले हैं। ये ब्रॉड बेस इंडेक्स में अगर आप देखें तो टॉप के 6 सेक्टर्स हैं, उन्हीं में ही अगर मैं बोलूं मेरा पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ब्रॉड बेस इंडेक्स के ऊपर बनाया जाएगा, करेक्ट। आप देखें स्लाइड पे, 6 के 6 सेक्टर से ही मेरा 60% पोर्टफोलियो तो खत्म हो गया। और उस पोर्टफोलियो में मेरा 95% जो है, ये 65 में से 55% लोकेशन लार्ज कैप में है। मुझे स्मॉल और मिड का कुछ एक्सपोजर मिलता ही नहीं। ओके, गेटिंग क्लोजर टू द सब्जेक्ट, पॉइंट आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू इज कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं आज की डेट में हमें इंडियन इकोनॉमी में। आप देखें सामने है आपकी स्क्रीन के, फिनटेक, कैपिटल मार्केट सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल। इसमें लार्ज कैप में तो 0% एक्सपोजर है, 0% अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल ही नहीं है। सारे की सारा अवेलेबिलिटी मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर है। ओके, जो इंक्रीमेंटल बाकी अपॉर्चुनिटी भी आप देखें जो केमिकल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और रियलिटी में आती हैं, उसमें भी लार्जर प्रेजेंस स्मॉल और मिड की तरफ है। लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। स्मॉल मिड, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, जितना भी आपने एक्शन अभी तक आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, पीएलआई जो स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का, एंड कमिंग स्लाइड विल टॉक अबाउट इट, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर अपॉर्चुनिटी स्मॉल मिड के अंदर है। पॉइंट वी आर सेइंग इज कि अर्निंग पर शेयर जो ईपीएस है स्मॉल मिड का, उसका भी प्रोजेक्शन जो है कंपैरेटिवली हाई है, 17% एंड 21% वर्सेज अ 15% ग्रोथ। बी विद मी फॉर सम टाइम। जो मैं आपको बोल रहा था कि स्मॉल मिड के अंदर जो साइक्लिकल ग्रोथ सेक्टर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, मटेरियल्स हैं, डिस्क्रिशनरी, रियल एस्टेट, ऑटो, उन सेक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है। रिस्क और रिटर्न का ऑप्टिमम संगम होना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर, एंड वो है आपके अपॉर्चुनिटी जो आपको फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड से मिलती है लेडीज जेंटलमैन। और ये स्लाइड इस चीज को कंप्लीटली सील करता है। कैसे? लॉन्गर टर्म 2005 से 2024 तक का रिटर्न डेटा है इंडेक्स बेस्ड। अगर आप देखें मल्टी कैप का रिटर्न, जो कि इंडेक्स में 50 25 25 के उसमें अवेलेबल है, 50% लार्ज कैप, 25% मिड एंड 25% स्मॉल, 16.56% return versus 16.81% of small cap। तो शॉर्ट टर्म में लगेगा कि हाँ हम स्मॉल कैप में जाएं तो हमें ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन लॉन्गर टर्म के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो सब कुछ मिटिगेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम रिस्क वर्सेस रिटर्न पोजीशनिंग। तो ये मल्टी कैप स्पेस आपको बहुत खूबसूरत तरीके से आपके क्लाइंट को वो एक मध्यम मार्ग के जरिए रिटर्न देने का ऑप्शन है। वही बात एक्सपेक्टेड उसकी भी है, अगर अर्निंग पर शेयर की, तो वो जो मैं पहले स्लाइड में दिखाया था, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ईपीएस है इस ब्लेंडेड मल्टी कैप इंडेक्स का, लगभग 17.5%। तो कैसा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है हमारी इसके पोर्टफोलियो के अंदर? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि जो अल्फा जनरेशन है, जो हम एक्स्ट्रा ग्रोथ हम लाएंगे, वो हम मिड स्मॉल कैप बिजनेस में देखेंगे, जो ग्रोथ का एलिमेंट है। क्वालिटी कंपाउंडर्स जो हमें दिखते हैं हमारे एनालिसिस के हिसाब से, वो हम स्मॉल मिड से पिक करेंगे। लार्ज कैप जो एक्सपोजर है उससे स्टेबिलिटी आएगी, एक बाय एंड होल्ड आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो वहां पे काम करेगी। एंड अगेन लार्ज कैप थीम्स का जो कंसोलिडेशन हम प्ले कर रहे हैं,
वो भी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में हेल्प करेगा। सिंपल तरीके से अगर देखें, मैं पोर्टफोलियो के कंस्ट्रक्ट की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ अगले 5-7 मिनट के अंदर। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तो गिवन है एज अ रेगुलेशन कि मल्टी कैप में आपको होना ही होना है। रिमेनिंग 25% जो है ना फ्रेंड्स, उसका अलोकेशन हम करेंगे, और वही इस फंड का मेरे हिसाब से अगर आप पूछें एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। इस रिमेनिंग 25% का हम अलोकेशन करेंगे एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत। हमने एक 3 फैक्टर फ्रेमवर्क बनाया है, यानी कि जब हमने स्पेस को स्टडी किया इंडस्ट्री में, हमने ये पाया कि ज्यादातर जो मल्टी कैप फंड्स हैं उनके अंदर जो रिमेनिंग 25% का अलोकेशन है वो इंट्यूटिव बेस्ड है, यानी कि बहुत डिफाइंड कोई प्रोसेस नहीं है। बात सही या गलत की नहीं है, मैं खाली बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन फ्रैंकलिन टेम्परमेंट मल्टी कैप में ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। ये 3 फैक्टर फ्रेमवर्क होगा। 3 फैक्टर में क्या क्या चीजें हैं? पहला लेग है उसका कि हम परफॉर्मेंस देखेंगे 2 साल का रोलिंग रिटर्न, स्मॉल और मिड का वर्सेस लार्ज कैप। ओके, इससे एक नंबर थ्रो करेगा और उससे इंफरेंस निकाला जाएगा। सेकंड, वैल्यूएशन देखा जाएगा स्मॉल मिड का ओवर लार्ज कैप, ये भी एक नंबर थ्रो करेगा और उसके इन्फ्लुएंसेस निकाले जाएंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी समझ से अगर आप पूछे, वो है मैक्रो स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स। फंड मैनेजमेंट टीम जो है वो ये देखेगी कि बॉस इस समय मैक्रो स्टेबिलिटी मॉनिटर्स, मैक्रोस कहाँ पे हैं, इंडिकेटर्स कौन से हैं वो इंडिकेटर्स? जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। इनका अगर हम हीट मैप बनाया जाए, इसको कलर कोडिंग करते हैं, तो इस समय ये डार्क ग्रीन में कलर्स इंडिकेट करते हैं, यानी कि इंडिया इकोनॉमी की जो बेसिक मैक्रो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत अच्छा एक आगे का रनवे बताते हैं। और इससे कॉन्फिडेंस मिलता है फंड मैनेजर को कि वो पहले वाले 2 जो रिलेटिव लेग हैं उनको वो आउटडू कर सके, यानी कि ज्यादा एक्सपोजर ले सकता है स्मॉल मिड के अंदर। तो हमारा करंट सजेस्टेड अलोकेशन हो सकता है 40-30-30, लगभग उसके आसपास इंडिकेट करता है। और ये एक्सरसाइज लेडीज एंड जेंटलमैन हर महीने होगी, यानी कि ये मार्केट कैप का अलोकेशन का रिव्यू विल हैपन एवरी मंथ। इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड। करेक्ट, दिस आई वांटेड टू शेयर विद यू। कौन से सेक्टर्स हैं आइडेंटिफाइड, हम थीम प्ले करेंगे, कौन सी थीम हमें प्रोबेबल है इस पोर्टफोलियो के अंदर बिल्ड करने के लिए। हम प्रीमियमाइजेशन एज अ थीम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए। कंज्यूमर क्रेडिट, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स और अर्बन हाउसिंग। प्रीमियमाइजेशन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आज की डेट में कि ये क्या मतलब है प्रीमियमाइजेशन का। ये शब्द आप शायद काफी सुन रहे हो स्टॉक मार्केट के पार्लेंस में, और ये क्यों इंपॉर्टेंट थीम है प्ले करने के लिए। एग्जाम्पल देता हूं मैं, सपोज आप व्हीकल्स का ले लीजिए। आज की डेट में जो है ना, ऑल्टो लार्जेस्ट सेलिंग कार नहीं है इंडिया की, ठीक है, शिफ्ट हो गया है सेडान से एसयूवीज की तरफ। ओके, हम प्रीमियम कार्स की तरफ जा रहे हैं। हम जो हॉलिडे कर रहे हैं वो हॉलिडे में भी हम बेटर तरीके से पैसा स्पेंड करते हैं। हम प्रीमियम होटल्स या प्रीमियम रिसोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। हम ज्यादातर अब हिचकते नहीं है एयर टिकट या एयर ट्रैवल करने के लिए। घर में भी वॉशिंग मशीन आई, वॉशिंग मशीन से सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आई, सेमी ऑटोमेटिक से लोग अब फुल्ली ऑटोमेटिक पे जाते हैं, फुल ऑटोमेटिक वाले ड्रायर के साथ जाते हैं। डिश वॉशर घर में आ रहे हैं। घर में जो गैजेट्स हैं वो हायर एंड आ रहे हैं। फोन्स जो हैं वो नॉर्मल फोन से स्मार्ट और स्मार्टर फोन की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक दिस थीम इज अ वेरी बिग थीम टू प्ले। खाली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हाउ द फंड हाउस थिंक। ये जो पीएलआई मैंने आपको पहले हिंट दिया था, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्लान, इसका क्रक्स आप देखें तो राइट हैंड साइड पे है। लगभग 5 लाख करोड़ का इंक्रीमेंटल केपेक्स प्लान है इन सेक्टर्स के अंदर जो आप सामने अपने स्क्रीन के देख रहे हैं। यानी कि अगर आप सेमी कंडक्टर्स को, ऑटोमोबाइल्स को, सोलर पीवी मॉड्यूल्स को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वाइट गुड्स, दीज आर द सेक्टर्स जहां के हम प्रोबेबल हैं कि हम मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करेंगे। फंड की जो मैनेजर हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वो किरण सेबेस्टियन फंड मैनेजर हैं। यही फंड मैनेजर मेरा अपॉर्चुनिटी फंड भी मैनेज करते हैं। तो अगर आपको हल्का सा ग्लिम्स देखना है कि हाँ फंड मैनेजर की अप्रोच क्या रही है, तो मेरे आप इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड का पोर्टफोलियो रेफर कर सकते हैं। ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है, और क्यों मैं इसको हाईलाइट करता हूँ अपने हर प्रेजेंटेशन के अंदर,
सब इन्वेस्टर हमसे आपसे इस समय ये पूछ रहे हैं कि भैया मार्केट बहुत हाई है, अग्रीड मार्केट हाई है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले 3 5 7 10 सालों के लिए इंडिया में क्या क्या चीजें प्रोबेबल हो सकती हैं। अब इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये डिस्कशन मैं और आप 2018 में कर रहे होते, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा आप, तो ये सेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 छह सेक्टर्स ही अवेलेबल नहीं थे 2018 में। रिटेल, फूड टेक, सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है टेक नेबल्ड, इंश्योरेंस, फिनटेक और लॉजिस्टिक्स अवेलेबल ही नहीं था 2018 में। यानी पिछले 5 सालों के अंदर 6 तो नए सेक्टर्स क्रिएट हो गए हैं। बीच में आ जाइए आप, 100+ कंपनीज, आईपीओ आए हैं कंपनीज के। करेक्ट। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एज एंड लॉन्ग वी आर मूविंग फॉरवर्ड, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होने वाली हैं मेरे को आपको इन्वेस्ट करने के लिए। इसका बहुत बड़ा अंडरलाइन फैक्ट क्या है, नीचे अगर आप ग्रिड देखते हैं, 83% इशुएंस जो है ना मैक्सिमम स्मॉल कैप में हुआ है। नाम इंडस्ट्री के रिटेल, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल्स, टेक इनेबल्ड बिजनेस। सो बहुत अपॉर्चुनिटी है स्मॉल मिड की। और डिफरेंशिएटर स्मॉल मिड में वही रहेगा जो कि आप अपना मल्टी कैप में रहेगा, जो आप स्मॉल मिड स्पेस को आप अच्छे से रिसर्च कर सके, आप प्ले कर सकते हो। लार्जली अभिनय, मैं खाली प्रेजेंटेशन के टुवर्ड्स एंड में जा रहा हूँ, एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग क्यू अप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन अगर आपको कोई हैं तो। ये प्रोबेबल थीम्स Yes, हैं sir. जो, हाँ, इस हम पोर्टफोलियो में देखते हैं बनते हुए आगे। डिजिटलाइजेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, कंज्यूमर क्रेडिट, फॉर्मलाइजेशन। आई एम गिविंग अ गुड ग्लिम्स। कुछ एग्जाम्पल भी आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं क्विकली। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के कुछ एग्जाम्पल हैं। ज्यादातर इसमें एग्जाम्पल आप देखोगे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। ध्यान करिए इनके रेवेन्यू की ग्रोथ के ऊपर। यानी कि स्टॉक 1 का जो रेवेन्यू ग्रोथ है 49% से हुआ है, स्टॉक 6 का 20% से हुआ है, मिड कैप स्टॉक का 40% से हुआ है। यानी कि काफी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर के अंदर। दूसरा एग्जांपल है टेक इनेबल्ड बिजनेस है। ये टेक इनेबल्ड बिजनेस है, ऐसी भी कंपनी जो 63% से रेवेन्यू ग्रो किया है लास्ट 3 साल के अंदर। एक लार्ज कैप स्टॉक है जो 40% से रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। अपॉर्चुनिटीज आप देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, इवन जो लोएस्ट है वो 21% पे एक मिड का स्टॉक नंबर 5 है, उसका रेवेन्यू का कैगर है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू कैगर है। कैपिटल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। आज के डेट में आप क्रेडिट कार्ड प्ले कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्ले कर सकते हैं, फिनटेक प्ले कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग प्ले कर सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट प्ले कर सकते हैं। तो हम काफी एक्साइटमेंट से, अपॉर्चुनिटी से इस पूरे फंड को देखते हैं। और ये एग्जाम्पल्स आपको दिखाए हैं कि काफी ग्रोथ के साथ जो ये नए सेक्टर्स हैं, नई थीम्स हैं, उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। एंड given the long term track record of Franklin Templeton, ladies and gentlemen, we will do a good job of multi cap fund. मैं समराइज करूंगा यहाँ पे कि जो फंड का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का, वो हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं अलॉन्ग मार्केट कैप। हैव कॉन्फिडेंस वी विल डू अ गुड जॉब। 3 फैक्टर फ्रेमवर्क एक डिफरेंशिएटर है। पॉइंट नंबर 2 ऑफ एफिशिएंट अलोकेशन बिटवीन मार्केट कैपिटल। अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम कई बार प्रूव कर चुके हैं थीम्स का इन द फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जर्नी। द कैपेबल टीम है हमारे पास में, एंड पोटेंशियल थीम जो मैंने आपको दिखाई है उसके अंदर बहुत कैपेसिटी बिल्डअप है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस ओरिएंटेशन है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का whenever we bring any fund to you. So this is the portfolio management team. Kiran Sebastian और अखिल कल्लूरी predominantly portfolio management रहेंगे। Principal portfolio manager हैं किरण सेबेस्टियन। Mr. जानकी रमन, my CIO of equity. Largely जो मैंने आपको बताया 3 फैक्टर फ्रेमवर्क, उसके ऊपर इनका ऑफ कोर्स एक निगाह रहेगी और प्ले करेंगे रोल उस कैपिटल अलोकेशन के लिए। But predominantly principal portfolio manager is Mr. Kiran Sebastian. And here I come to end of my presentation, Abhinav. We can have some questions if people have for me. Yes, sir. Sir, सबसे पहले I would like to congratulate you and your team for such a wonderful journey. Definitely, I mean, it's been a wonderful journey. It's an honor to have a post stamp by your name. I mean, by the company's name per se.
and a very very big congratulations to you and your team for such a wonderful journey and such a huge contribution to the Indian growth story, I would say. So एक बहुत अच्छा आपका contribution रहा है, thank you for that. एक सवाल एक ऐसा रहा है कि सर ये मल्टी कैप फंड इसी स्टेज पे लॉन्च करने की आपकी मतलब क्या क्या सोच विचार था इसके पीछे? बिकॉज आपने कहा कि यू ऑलवेज आइडेंटिफाइड थिंग्स एट वेरी अर्ली स्टेज, तो क्या थॉट प्रोसेस रहा है ये मल्टी कैप फंड मैं लॉन्च क्लियर करने के करता हूँ पीछे? अभिनय। तो उसमें ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन मैंने बोला ऑन द थीम्स एंड पोटेंशियल, नॉट अबाउट द प्रोडक्ट कैटेगरी। देखिए ओके, प्रोडक्ट कैटेगरी को आप परफेक्टली टाइम नहीं कर सकते कभी भी, करेक्ट। करेक्ट। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की एक अप्रोच रही है कि हाँ अननेसेसरी फंड लॉन्च करके फ्लड ना किए जाए। हमने अपॉर्चुनिटीज फंड को रिपोजिशन किया। वो 600 हम्म, करोड़ के उसके एसेट थे, इस समय 4700 करोड़ का फंड है वो। दैट्स हाउ वी वर हम्म, फोकसिंग ऑन द फंड कि हाँ एक एक करके चलते हैं। टाइमिंग में तो हमारा ही विश्वास नहीं है कि हाँ फंड को लॉन्च करने का, खरीदने का कोई टाइमिंग होना चाहिए, करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट, जब पैसा करेक्ट, हो तब इन्वेस्ट करिए, ऐसा कहा जाता करेक्ट, है। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में था कि फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप, आई डोंट नो इफ करेक्ट। आई शुड टेक दैट यस, आल्सो। यस, यस सर, प्लीज, डेफिनेटली, फ्लेक्सी 100%, डू कैप टेक इट। अगर आप देखेंगे, जो फ्रेंड्स हैं हमारे इस समय कॉल पे, लगभग 3.5 लाख करोड़ की इस समय कैटेगरी है इंडस्ट्री में फ्लेक्सी कैप फंड की। उसके अंदर अगर आप देखोगे उसका अलोकेशन और मार्केट कैप 67 to 68% अलोकेशन लार्ज कैप में है। करेक्ट, और होता क्या है देखिए, इंट्यूटिवली अगर मेरा 3 फैक्टर फ्रेमवर्क ना हो और मैं और आप सिंपली मैनेज कर रहे हो फंड को, तो इंट्यूटिवली ये लग रहा है कि नहीं यार स्मॉल मिड में तो बहुत ज्यादा हीट है इस समय, थोड़ा कम करो, करेक्ट। लेकिन करेक्ट, क्योंकि वो 3 फैक्टर फ्रेमवर्क है, वो ह्यूमन इंट्यूशन के ऊपर सुपरसीड करता है। वो कहता है कि नहीं, मेरा 40 से 45% मेरा स्मॉल मिड में एलोकेशन हो सकता है, वी आर कंफर्टेबल। करेक्ट। या अच्छा सर, आप थोड़ा सा वो क्वालिटी कंपाउंडर्स के बारे में आप बात कर रहे थे, तो जी, थोड़ा अगर उसके ऊपर थोड़ा आप इलेबोरेट कर पाए तो। देखो क्वालिटी कंपाउंडर क्या होता है ना अभिनय, ये समझना जो भी हम लोग इस ट्रेड में बहुत जरूरी है। होल दिस ट्रेड, दिस बिजनेस इज अबाउट कंपाउंडिंग। करेक्ट, अगर हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म रहिए, क्यों बोलते हैं लॉन्ग टर्म रहिए? क्योंकि लॉन्ग टर्म रहेंगे तभी आपका 7वें 8वें साल से आपको कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट नजर आएगा। कोई करेक्ट, भी बिजनेस है, कोई कंपनी है, किसी भी कंपनी का अल्टीमेट मोटिव क्या होता है कि बॉस वो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, करेक्ट। तो डेफिनेटली, प्रॉफिट जब किसी एक कंपनी को, कोई बोले कि मैं बहुत बड़ा फंड मैनेजर हूं, मैं स्टॉक को आज खरीदता हूं, 6 महीने बाद बेच देता हूं, फिर मैं नया स्टॉक खरीद लेता हूं और फिर उसमें 3 महीने बाद रिटर्न कमा के फिर बेच देता हूं, ऐसे नहीं चलता है बड़े भाई। अगर आपने बिजनेस आइडेंटिफाई करने होते हैं, उस बिजनेस की जो ग्रोथ है, तो क्वालिटी कंपाउंडर का मतलब है कि उसकी अर्निंग कंपाउंड होती है फिर। करेक्ट, 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 सोचिए अगर किसी के पास आज इन्फोसिस का ओरिजिनल इशू पड़ा हुआ है अगर, और मेरे पास, मैं बोल रहा हूं मेरे पास है मेरे फंड के, आर यू गेटिंग इट? तो उसकी कंपाउंडिंग आप समझ सकते हैं, यस सर, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस माइंडसेट को समझना कि जो फंड मैनेजर है उसे एक नॉर्मल आम इन्वेस्टर की तरह नहीं बिहेव करना। हम अर्निंग कंपाउंडर, वही क्वालिटी कंपाउंडर, वही मतलब है कि अगर आपने क्वालिटी देखी है तो बिजनेस में बहुत जल्दी स्केल होते हैं। करेक्ट, करेक्ट सर। फिर इसमें एक और आई मीन आई रियली लाइक द आइडिया कि हम एक फ्रेमवर्क के तहत चल रहे हैं कि जी, 25 25 25 इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल, एंड वो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है दैट इज द फ्रेमवर्क। सो सर उसमें हम लोग ये जो व्हाई आर वी लुकिंग एट दीज स्मॉल एंड मिड कंपनीज, ऑब्वियसली देयर आर सम ऑब्वियस एडवांटेजेस देयर, तो इसके अगर आप इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा और इलेबोरेट कर पाए तो काफी अच्छा रहेगा। अभी स्मॉल मिड पे, आई एम सॉरी, मैं एक मैसेज को रिवर्ट कर रहा था, आपका क्वेश्चन था स्मॉल मिड में क्यों इतना कर रहे हैं, राइट? हाँ मतलब उसकी चीजें कुछ ऑब्वियस है, बट एक एक फंड फंड मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एज एन एएमसी जब आप इस चीजों को बहुत ब्रॉडली देखते हैं, बिकॉज क्या होता है हम इन्वेस्टर्स ना चीजों को देख के बहुत जल्दी व्हाट डू यू से वी गेट वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्मॉल टर्म फैक्टर्स, बट व्हेन यू लुक एट इट, जैसे कोई ऊपर हो गया एकदम से नीचे आ गया, बट यू नो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक, तो ये अगर आप उसको एक्सप्लेन तो करते तो काफी अभिनय अच्छा मैं रहेगा। वही, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैंने जो QGSV फ्रेमवर्क बताया ना, तो करेक्ट सर। दैट टेक्स केयर ऑफ इट एग्जैक्टली। जितने भी इशुएंस आ रहे हैं कैपिटल मार्केट में या नई कंपनीज आई हैं पिछले 3 4 साल के अंदर,
जरूरी नहीं है सभी कंपनी इन्वेस्टेबल्स और कंपनीज हो। करेक्ट करेक्ट। देखिए समझिएगा, जब इस तरह की तेजी आती है ना, तो सभी तरह के लोग बाजार में आते हैं। और करेक्ट। वही गलती होती है जो एक आम इन्वेस्टर है या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसको हमें लगता है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। बुरा मत मानिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। मेरे को भी 25 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं भी आज नौकरी कर रहा हूँ बॉस, और मेरा भी इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू ही होता है। करेक्ट सर। मेरा जो ये जितने भी लोग इस समय मेरे फ्रेंड्स कॉल पे हैं, एक चीज को सोचिए, बहुत देसी भाषा में बोल रहा हूं मैं। जो मेरा चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, सीआईओ, वो भी नौकरी ही कर रहा है। समझिएगा इस चीज को। ऐसा नहीं होता कि बॉस को स्ट्रॉन्ग टिप मिल जाती है और 2 साल में वेल्थ बन जाती है और तिगुना चौगुना पैसा हो जाएगा। नहीं होता, वो नहीं होता। एक प्रोसेस बहुत है और बढ़िया बिना बात सर। प्रोसेस के कुछ नहीं है बड़े भाई। तो बहुत बढ़िया जो सर। स्मॉल मिड में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि अगर आप पीएलआई का थ्रस्ट है गवर्नमेंट का, करेक्ट, आप उसका पूरा इशुएंस देख लीजिए। मैक्सिमम जो इशुएंस हुए हैं, अच्छी क्वालिटी कंपनी जो निकल के जो आई हैं, वो स्मॉल मिड में ही आई है। लेकिन हु आर द मेन एंड हु आर द बॉयज? करेक्ट। करेक्ट। वो मैं बोल रहा हूँ कि बॉस, आई विल डू अ गुड जॉब आउट ऑफ इट, हैव कॉन्फिडेंस ऑन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन आवर प्रोसेस, डेफिनेटली सर। दैट वी विल डू अ वेरी गुड जॉब आउट ऑफ इट। और मल्टी कैप क्या है? एक बड़ा स्पेस है क्लाइंट पोर्टफोलियो के लिए। आप खुल के इसको बेच सकते हैं, कॉन्फिडेंस से आगे काम कर सकते हैं इस एनएफओ के अंदर भी और आगे भी। एंड आवर प्रॉमिस टू यू दैट यू विल डू अ गुड जॉब। यार रिटर्न तो कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, प्रोसेस में डेफिनेटली। आपको प्रॉमिस कर सकता, वो हमारा एक हॉलमार्क है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का। डेफिनेटली सर। आई थिंक इन इसके बीच में आपने एक और सवाल का ऐसी मतलब आपके आंसर में ही एक आंसर छुप गया था। एक सवाल था कि चर्न कितना होगा, बट आई थिंक वी आर नॉट लुकिंग एट चर्न, वी आर लुकिंग एट बाय एंड होल्ड एज अ नहीं, स्ट्रेटेजी। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इज नॉट अबाउट चर्न। और ये जिसने भी सवाल किया है ना, फैक्ट शीट हमारी पब्लिश्ड है, वेबसाइट पे है, आप प्लीज देख लीजिए। मेरे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, वो भी हमने फर्स्ट थे इंडस्ट्री में जिसने पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो पब्लिश करना चालू किया। और मैं करेक्ट आपको सर। बता देता हूँ, अगर किसी पोर्टफोलियो का किसी फैक्ट शीट में लिखा है पोर्टफोलियो टर्नओवर इज 25%, दैट मीन्स एवरेज होल्डिंग इज 4 years। 25 फॉर द 100। हाउ टू रीड आउट, मैं आपको बता रहा हूँ। जो अपॉर्चुनिटीज फंड है उसका हाईएस्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि मैंने फंड रिपोजिशन किया है 2 साल पहले। उसके अलावा करेक्ट। किसी भी मेरे फंड का आपको पोर्टफोलियो टर्नओवर 70, 80, 90, 100% नहीं मिलेगा। 20, 30, 35% के आसपास हमारे पोर्टफोलियो टर्नओवर होते हैं। बहुत लंबे हमारे होल्डिंग पीरियड होते हैं। वी यस होल्ड अ डेफिनेटली। स्टॉक विद लॉट ऑफ कन्विक्शन। हम तो स्टॉक करेक्ट। बोलते ही नहीं, हम तो बिजनेस खरीदते हैं सब। हाई क्वालिटी कन्विक्शन। जी। सर थैंक यू सो मच। आई मीन यही कुछ सवाल थे इन सारी चीज़ों के बारे में। आई थिंक द इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज क्वाइट विजिबल एंड आई थिंक आपका आपका कन्विक्शन भी बहुत विजिबल है इन सारी चीज़ों में। सो आई एम होपिंग कि यू नो दिस दिस फंड गेट्स ओवर सब्सक्राइब्ड एंड गेट्स आपके ऊपर है मैक्सिमम। अभिनव, सब लोग जो कॉल पे हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बिल्कुल बिल्कुल यू सर, बिल्कुल वी विल बिल्ड अप अ गुड बुक। डेफिनेटली सर। एंड आई मीन सी एक एक ये भी चीज होती है कि जब फ्रैंकलिन जैसा एक बहुत ट्रस्टेड नाम आपके साथ जुड़ता है, तो एक वो एक बड़ी गर्व की बात होती है, बड़ी एक यू नो प्राइड फीलिंग होती है ये। एंड ऑब्वियसली आई मीन फ्रैंकलिन हैज डिलीवर्ड, सो आई डोंट थिंक देयर इज अ ट्रस्ट इशू एट सच। So I think it's all about how the conviction is being sold and told to the people and to the investors, which obviously they will believe. So thank you so much, sir, for थैंक giving यू your अभिनव, valuable time. थैंक यू सो And मच। thank you so much for coming here, giving such a wonderful insight. And it was really an eye opener for all of us here कि यार हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या चीज है जो हमें ड्राइव कर रही है एज अ कंपनी, एज अ सेक्टर, हम लोग किस चीज की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड Sure, Abhinav, always गिविंग अस। pleasure to be with Asset Plus and team, and will be more than happy to come whenever you call me. Thank you. Yes sir, thank you so much, Thank thank you you so very much much. sir. Okay sir.